ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں آپ کی زندگی کے تمام فیصلے، آپ کی آزادی، آپ کے انتخاب، یہاں تک کہ آپ کا مستقبل، یہ سب ایک سینٹرل اتھارٹی کے کنٹرول میں ہو۔ ایک ایسی گلوبل گورنمنٹ جو پوری دنیا کو چلا رہی ہو۔ ایک ایسا نظام جو ظاہری طور پر عالمی اتحاد اور ترقی کے خواب کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ حقیقت میں یہ پورا نظام طاقت کو محض چند ہاتھوں میں مرکوز کرنے کا ایک ذریعہ ہو۔ یہی ہے وہ حقیقت جسے نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور جس کا سامنا آنے والے چند سالوں میں یہ دنیا کرنے والی ہے۔ پہلی نظر میں نیو ورلڈ آرڈر عالمی امن کا ایک پروگرام معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا اور تمام قومیں ایک روشن مستقبل کے لیے مل کر کام کریں گی۔ لیکن اس خوشنما نقاب کے پیچھے طاقت کے لالچ میں لتڑا ایک خطرناک ایجنڈا چھپا ہو سکتا ہے، جس سے انفرادی آزادیوں اور قومی خود مختاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور جس کی جگہ ایک مرکزی عالمی حکومت لے سکتی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یہ ویژن عالمی اتحاد کی بجائے انسانیت کو ایک ایسے دور میں دھکیلنے کا خطرہ رکھتا ہے جو ہر طرح کی شخصی اور قومی آزادی سلب کر لے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات، اس کے لٹریری تصور، پریکٹیکل امپلیکیشنز اور اس کے گرد موجود کانسپریسیز کی تلاش کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس نقطے پر اپنے موقف کی بنیاد رکھیں گے کہ نیو ورلڈ آرڈر کا اصل مقصد عالمی اتحاد ہے یا دنیا پر مکمل کنٹرول کی ایک سازش، ایک ایسا قدم جو دنیا کو آمریت کی طرف لے جا سکتا ہے اور جس کو وقت سے پہلے بے نقاب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے کسی عالمی حکومت کے قیام کا کوئی خفیہ پروگرام وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ بنیادی طور پر نیو ورلڈ آرڈر ایک حقیقی خیال کے گرد گھومتے مختلف سازشی نظریات کا ایک مجموعہ ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے انداز میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک بڑی خفیہ آمرانہ عالمی حکومت موجود ہے یا ایسی کسی حکومت کے قیام کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ گلوبل گورنمنٹ خفیہ طور پر کام کرتے ہوئے پردے کے پیچھے سے دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اور عوام کے سامنے اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو علل اعلان پوری دنیا پر اپنی حکمرانی ظاہر کرتی جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا تعلق الومیناٹی سے ہے، کچھ لوگ اسے زائنزم یا فری میسن سے جوڑتے ہیں، اور کچھ کے مطابق یہ دنیا کے امیر ترین افراد کا ایک نیٹ ورک ہے جو دنیا کو صرف اپنے فائدے کے لیے کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ ایسے فری میسنز کی تاریخ، اس کے عالمی نیٹ ورک اور حکومتوں پر اس کے کنٹرول سے متعلق میں پہلے ہی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان نظریات میں سے زیادہ تر صہیونیوں کی عالمی اقدار قائم کرنے کی سازش پر مبنی نظریات ہیں، لیکن چاہے یہ کوئی بھی ہوں اور اگر یہ واقعی موجود ہیں تو تاریخ کے صفحات میں ایسے شواہد بھی ضرور موجود ہوں گے جو ہمیں اس نیو ورلڈ آرڈر کے فٹ پرنٹ فراہم کرتے ہوں گے۔ جب سے انسان دنیا میں موجود ہے، ہمیشہ ایک ایسا گروہ موجود رہا ہے جو ہر چیز پر قبضہ جمانا چاہتا تھا، جیسا کہ یورپ کے کولونائزرز کا دور یا 300 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم کی دنیا کو فتح کرنے کے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کی مہم، جس کا آغاز اس نے پرشین امپائر کو زیر کرنے سے کیا تھا، اور پھر 13ویں اور 14ویں صدی کی منگول سلطنت جس نے 9 ملین مربع میل پر محیط زمین پر قبضہ کیا، جو تاریخ کی سب سے بڑی جغرافیائی سلطنت تھی، اور پھر 20ویں صدی میں ہٹلر کی دنیا پر حکمرانی کی کوششیں۔ یعنی بنیادی طور پر جہاں انسان موجود ہوں گے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتا ہوگا۔ لیکن جس نیو ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں اسے ان واضح مثالوں جیسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کے دور کے نیو ورلڈ آرڈر کو بہت زیادہ خفیہ ہونا چاہیے، بالکل ایلومیناٹی یا بلڈر برگ گروپ کی طرح، جس کے وجود کا دہائیوں تک انکار کیا جاتا رہا، لیکن لوگ دیکھ رہے تھے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا یہ گروپ ہر سال باقاعدگی سے ایک خفیہ ملاقات کرتا ہے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ طاقتور ترین لوگ آخر کس مقصد کے لیے ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں۔ The billionaires, politicians, bankers and European royalty. So over there, the world's power elite are gathering. People want to know what's going on, what we're talking about. If we cross that police tape, we'll be arrested. گروپ کی غیر معمولی رازداری سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ अगर वो कुछ छुपा रहे हैं तो वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी सख्त राजदारी के बावजूद कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो हम जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि बिल्डरबर्ग मीटिंग्स का आगाज 1954 में हॉलैंड के बिल्डरबर्ग होटल में नीदरलैंड के शहजादा बर्नार्ड की सरबराही में हुआ था। इसके बाद ये इजलास हर साल तवातर से एक मुख्तलिफ जगह पर होता है। ग्रुप की मौजूदगी का ऑफिशियल ऐलान होने के बाद अब हम इजलासों में ज़ेरे बहस आम मौज़ूआत को भी जान सकते हैं। ग्रुप की वेबसाइट पर शुरका या मुकर्ररीन का नाम जाहिर किए बगैर इजलासों की कार्रवाई की मखसूस मालूमात को जाहिर किया जाता है। डेविड आइके बरतानवी सहाफ़ी और एक मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बिल्डरबर्ग ग्रुप पर तहकीक की है और 20 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। उनका मानना है कि दुनिया को कंट्रोल करने के नए आलमी निज़ाम के पीछे ये ग्रुप मौजूद है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मशहूर हुई, जब अमेरिकी सदर वुडरो विल्सन ने मुस्तकिल के तनाज़ात को रोकने के लिए एक नए आलमी ढांचे का तस्वुर पेश किया। इस विजन में लीग ऑफ नेशंस की तश्कील शामिल थी, जिसका मकसद कौमों के दरमियान अमन और ताउन को यकीनी बनाना था। अगरचे लीग ऑफ नेशंस कामयाब ना हो सकी, लेकिन मुनज़्ज़म आलमी निज़ाम का ख्याल बरकरार रहा और आलमी सियासत पर असर अंदाज होता रहा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वुर सर्द जंग के इख्तिताम पर दोबारा उभरा, जब अमेरिकी सदर जॉर्ज H.W. बुश ने सोवियत यूनियन के इख्तिताम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम का एक और मौका करार दिया, जो आलमी अमन और इत्तेहाद पर मबनी होगा। बज़ाहिर ये ताउन और अमन के बारे में था, लेकिन इस तस्वुर के गहरे असरात ने इसके असल मकसद पर सवालात उठा दिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ऑफिशियल्स की जानिब से अक्सर एक बेहतर और ज्यादा पुरअमन दुनिया के ख्वाब के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसका असल मकसद इस मिसाली ख्याल से बहुत मुख्तलिफ मालूम हो सकता है। इस तस्वुर का असल हासिल एक मरकजी आलमी हुकूमत का क़याम है और इस किस्म के किसी भी आलमी कंट्रोल का नतीजा इनफरादी आज़ादियों और कौमी खुद मुख्तारी के खात्मे की सूरत में निकलना लाजिम है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि फैसले करने की असल ताकत मकामी हुकूमतों या अफराद के पास नहीं रहेगी, बल्कि ये चंद मखसूस अशराफिया के हाथों में मरकूज हो जाएगी, जो आलमी पॉलिसियों के मुताबिक फैसले करेंगे। इस दलील को आगे बढ़ाते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हकीकत में किसी तरह के इत्तेहाद की तरफ नहीं, बल्कि आमरियत के दरवाजे की तरफ एक रास्ता है। आप पूरी इंसानी तारीख उठाकर देख ले, अमन और तरक्की के वादे अक्सर ताकत के इर्तकाज को छुपाने के लिए किए जाते हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज होने वाले फैसले महज चंद अफराद करते हैं। सियासी लीडर्स या कौम को मजबूत करने की बजाय तमाम इख्तियार गैर मुंतखब ग्लोबल एलीट को मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर वही अशराफिया हर सफेदो स्याह की मालिक बन जाती है। डिस्टोपियन लिटरेचर में भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वुर पेश किया गया है, जहां मुसन्निफीन ने मरकजी कंट्रोल के खतरात के बारे में खबरदार किया है। जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के एक नॉवल बिग ब्रदर में एक ख्याली हुकूमत के जरिए आलमी आमरियत का तस्वुर वाज़े किया गया है। ये नॉवल दिखाता है कि ताकत के इर्तकाज से किस तरह शदीद निगरानी, सच्चाई में रद्दोबदल और इनफरादी आज़ादियों का खात्मा हो सकता है। इसी तरह एल्डस हेक्सले के नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक ऐसी सोसाइटी का तस्वुर पेश किया गया है जहां साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और इनफरादी आज़ादी के खात्मे के जरिए मरकजी कंट्रोल हासिल किया जाता है, और यह सब समाजी हम आहंगी के नाम पर होता है। मुख्तलिफ लिटरेचर में बार बार सामने आने वाले ऐसे मौज़ूआत हकीकी दुनिया को दरपेश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खतरात की तरफ इशारा करते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि तरक्की और इत्तेहाद के बहाने किस तरह शख्सी आज़ादियों को छीना जा सकता है। एक बेहतर मुस्तकबिल का वादा अक्सर कंट्रोल्ड पॉलिसीज और बेकाबू इख्तियार को जायज़ करार देने के लिए किया जाता है। ये ख्याली कहानियां महज वार्निंग्स नहीं हैं, बल्कि इस बात की अक्कासी करती हैं कि जब ज्यादा ताकत चंद कंट्रोल फ्रीक अफराद के हाथों में चली जाए तो क्या होता है। लिटरेरी नुक्ता नजर इस दलील को तक़वियत देता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने बज़ाहिर अजीम मकासिद के बावजूद बिल आखिर आमरियत ही की राहें हमवार करता है। अमन या तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कंट्रोल को मामूल बनाना उन आज़ादियों को खतरे में डाल देता है जिनका ये निज़ाम खुद तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा करता है। अमली तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अक्सर ग्लोबलाइजेशन के साथ हम आहंग नजर आता है।
यानी तिजारत, टेक्नोलॉजी और मुश्तरका पॉलिसियों के जरिए कौमों का बाहम जुड़ना। अगरचे ग्लोबलाइजेशन इक्तसादी तरक्की और सकाफती तबादले का वादा करती है, लेकिन इसका खतरनाक पहलू मरकजी कंट्रोल की तरफ राह हमवार करता है। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF जैसे ताकतवर इदारे इस्तेहकाम के ज़राए के तौर पर पेश किए जाते हैं, लेकिन इनकी ताकत अक्सर इनफरादी कौमी खुद मुख्तारी को खत्म कर देती है और इस तरह की पॉलिसियां डिजाइन की जाती हैं जो कौमी जरूरियात पर आलमी अशराफिया की तरजीहात को फोकियत देती हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इसकी वाज़े मिसाल के तौर पर मौजूद है, जहां इल्जाम आयद किया जाता है कि अमरीकी दबाव में रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए अवामी उमंगों के बरखिलाफ एक कठपुतली हुकूमत कायम कर दी गई है। पाकिस्तान के अलावा भी मिडल ईस्ट समेत दुनिया के हर खित्ते में 20 ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां अक़वाम मुत्तहिदा या IMF के जरिए कई कौमों को इंटरनेशनल कंट्रोल की पॉलिसी के तहत ज़ेर किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजीज का अरूज भी इस तब्दीली में अहम किरदार अदा करता है। डिजिटल सर्विलेंस, मसनूई ज़हानत और डेटा इकट्ठा करने वाले निज़ाम अक्सर हिफाजत और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दामात के तौर पर पेश किए जाते हैं। हकीकत में ये टेक्नोलॉजीज अवाम की निगरानी और उन पर बेमिसाल अंदाज में काबू पाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ ममालिक में नाफिज करदा सोशल क्रेडिट सिस्टम और मैस सर्विलेंस के प्रोग्राम एक आलमी निज़ाम के आमिराना प्रोटोटाइप के तौर पर पहले से काम कर रहे हैं, जहां सेंट्रल कंट्रोल के लिए शख्सी आज़ादी को कुर्बान कर दिया जाता है। इसकी वाज़े मिसालों के तौर पर चीन और नॉर्थ कोरिया मौजूद हैं, जहां इनफरादी आज़ादी तकरीबन ना होने के बराबर है। कोरिया में तो इस हद तक सर्विलेंस है कि आपका फोन किसी भी वक्त में आपकी मर्जी के बगैर खुद से ही एक स्क्रीनशॉट लेकर अथॉरिटीज को भेज देगा, ताकि अथॉरिटीज को ये पता चल सके कि आप फोन पर किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक पुरअमन आलमी हुक्मरानी का तस्वुर पेश किया जाता है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? जब अक़वाम को आलमी मुआहिदों और एलीट ग्रुप्स की नाफिज करदा पॉलिसियों के तहत बांध दिया जाता है, तो वो आज़ादाना फैसले करने की सलाहियत खो देती है। ये मरकजी इख्तियार मकामी हुकूमतों और सकाफतों को कमजोर कर देता है और एक ऐसा यकसा निज़ाम तख्लीक करता है जहां तनव्वु और खुद मुख्तारी की कुर्बानी दे दी जाती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत मुतारिफ कराई जाने वाली पॉलिसियां अक्सर माहौलियाती तब्दीली, वबाई अमराज या माशी अदम इस्तेहकाम जैसे आलमी मसाइल हल करने का दावा करती हैं। अगरचे ये मसाइल हकीकी हैं, लेकिन पेश करदा हल इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो सख्त ज़वाबित, महदूद आज़ादी और गैर मुंतखब शुदा आलमी इदारों के ज्यादा कंट्रोल का बाइस बनता है। हकीकत यह है कि आलमी मसाइल को हल करने के इस बयानिए को ताकत को मजबूत करने और इनफरादी और कौमी आज़ादी को ख़त्म करने के आलमी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तवील अरसे से साजिशी नजरियात का गढ़ रहा है। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और बिल्डरबर्ग ग्रुप जैसी दीगर खुफिया तंजीमों पर एक मरकजी आलमी निज़ाम के क़याम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले बड़े वाक़यात को तरतीब देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगरचे कुछ लोग इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हैं, लेकिन इक़्तिदार के इर्तकाज़ और कौमी आज़ादियों के खात्मे के बार बार होने वाले वाक़यात इस बात को तक़वियत देते हैं कि शायद हकीकत में पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश जरूर चल रही है। मरकजी इदारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अक्सर आलमी अमन और ताउन के लिए एक कदम के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन नाक़िदीन का मानना है कि ये बयानिया इसके आमिराना मकासद को छुपाने के लिए बहुत एहतियात से तैयार किया गया है। सिक्योरिटी, माशी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे फ़वाइद पर जोर दिया जाता है, जबकि खुद मुख्तारी और इनफरादी आज़ादी के बारे में खदशात को पसे पुश्त डाल दिया जाता है। इसके अलावा पॉलिसी साजी में शफाफियत की कमी मजीद शकूक व शुबहात को हवा देती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर सबसे बड़ी तनकीद इसके जमहूरी उसूलों से इन्हिराफ पर की जाती है। एक मरकजी आलमी हुकूमत यकीनी तौर पर गैर मुंतखब शुदा ओहदेदारों या एलीट ग्रुप्स के जरिए चलाई जाएगी, जिससे आम शहरियों को उन फैसलों में हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा जो बराह रास्त उनकी जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। अमल जमहूरी इक़्तिदार की बुनियाद को ख़त्म कर देता है और इक़्तिदार को चंद लोगों के हाथों में मरकूज करने वाले निज़ाम को जन्म देता है। तारीख हमें अनगिनत मिसालें फराहम करती है
जहां तरक्की और इत्तेहाद के वादों के साथ शुरू होने वाले निजाम जबर की रियासतों में तब्दील हो गए। रोमन सल्तनत से लेकर 20वीं सदी की आमरीयतों और रूसी इनकलाब तक मरकजी इक्तदार ने हमेशा कंट्रोल ही को जन्म दिया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बज़ाहिर तरक्की के वादे करता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आलमी आमरीयत की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। आने वाले वक्त में हमें ये सवाल खुद से करना होगा कि क्या तरक्की का ये वादा आजादी की कीमत पर हासिल करना दुरुस्त फैसला होगा। एक मरकजी निजाम आर्जी तरक्की तो ला सकता है, लेकिन इसकी असल कीमत क्या होगी? आजादी और खुद मुख्तारी की कुर्बानी बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।